بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آج بہت خوش تھی کیونکہ میری سب سے بڑی بیٹی ساجدہ کا رشتہ آ رہا تھا۔ گو کہ یہ سب پہلی دفعہ نہیں ہو رہا تھا، اس سے پہلے بھی متعدد بار رشتے آئے اور میری بیٹی کو ٹھکرا کر چلے گئے۔ وجہ تھی میری بیٹی کا سانولا رنگ۔ اس رنگ نے اس کی ہر خوبی پر پردہ ڈال دیا تھا۔ اللہ نے تو مجھے 7 رحمتیں دی تھیں جنہیں زمانے والوں نے سحمتیں بنا دیا تھا۔ میری 7 بچیاں کالی تھیں۔ میں تو اب کسی معجزے کی منتظر تھی۔ ہوا کچھ یوں کہ رشتے والی عورت ہمارے گھر آئی، بڑی تسلی سے چائے وغیرہ پی، پیٹ پوجا کر کے اسے آخر خیال آ ہی گیا کہ وہ تو لڑکی دیکھنے آئی ہے۔ وہ بولی، بہن بلائیں نا اپنی بیٹی کو۔ میں جلدی سے اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ میں بھی سنوری سی ساجدہ کو اپنے ساتھ باہر لے آئی۔ اس عورت نے میری بیٹی کو دیکھا تو بولی، بہن میں نے بچی کا بولا تھا، اس لڑکی کی عمر تو کافی زیادہ ہے۔ دراصل میرا سمیر تو ابھی بہت چھوٹا ہے، اس کا اور آپ کی بیٹی کا کوئی جوڑ نہیں بنتا۔ ساجدہ ایک دم ہی غصے سے کھنکار کر بولی، یہ سب آپ کو ہمارے گھر میں مفت کی چیزیں ٹھوسنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ لڑکے والوں نے تو اپنا تیرا ہی بنا لیا ہے کہ لڑکی دیکھنے جاؤ، غریب ماں باپ پر بوجھ بنو اور ان کے منہ پر ان کی بیٹی کے عیوب گنوا کر باہر نکل آؤ۔ کوئی شرم، کوئی حیا نام کی چیز بھی ہے تم لوگوں میں؟ پھر ساجدہ نے اپنا رخ رشتے کروانے والی بوا کی طرف کیا اور بولی، آپ پچھلے 7 برس سے میرا رشتہ ڈھونڈ رہی ہیں، آپ کو اب تک معلوم ہی نہیں ہوا کہ ہماری حیثیت کیا ہے، میری عمر کتنی ہے، میری رنگت کیسی ہے؟ کچھ بھی نہیں معلوم آپ کو؟ میری مانے تو دونوں یہاں پہ دفع ہو جائیں، نہیں تو میں وہ حشر کروں گی کہ دوبارہ رشتہ دیکھنے کے قابل نہیں رہیں گی آپ۔ اس عورت نے کانوں کو ہاتھ لگایا اور بولی، توبہ توبہ، کتنی لمبی زبان ہے اس لڑکی کی، کوئی لحاظ نام کی چیز نہیں ہے۔ زلیخا تو گھر چل، پھر میں تم سے پوچھوں گی کہ کن بد تہذیبوں میں لے گئی تو مجھے۔ وہ دونوں عورتیں باہر نکل گئیں تو ساجدہ زمین پر بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے اپنی بچیوں کی بہت اچھی تربیت کی تھی، میری کسی بیٹی نے آج تک کسی کے سامنے اف تک نہیں کیا تھا، لیکن آج میں نے اسے نہیں ٹوکا۔ آخر وہ بھی تو انسان تھی، 7 سالوں سے وہ انکار کی اذیت سہ رہی تھی۔ میں نے ساجدہ کے سر پر ہاتھ پھیرا اور بولی، غم نہ کرو میری بیٹی، اللہ سب بہتر کرے گا۔ آج جب میں نے یہ معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا تو خود بھی پرسکون ہو گئی اور بچیاں بھی خوش ہو گئی تھیں۔ تبھی ہمارے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی تو میں جلدی سے اٹھی اور جا کر دروازہ کھول دیا۔ سامنے کا منظر جہاں حیران کن تھا وہیں بہت دلچسپ بھی تھا۔ ہمارے غریب خانے کے سامنے 2 بڑی بڑی گاڑیاں آ کر رکی ہوئی تھیں، جن میں سے 2 شہزادے جیسے لڑکے نکلے تھے۔ وہ ادھر ادھر بڑے غور سے دیکھ رہے تھے، ایسا ہی لگتا تھا جیسے وہ غلطی سے اس چھوٹی سی گلی میں آ گئے ہوں۔ کار میں سے ایک عورت بھی نکلی تھی، وہ میری طرف بڑھی اور بولی، بشرا آپ کا ہی نام ہے کیا؟ میں نے جلدی سے اس بات میں سر ہلا دیا اور بولی، جی میں ہی بشرا ہوں۔ اس عورت کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی اور وہ بولی، شکر ہے آپ کا گھر مل گیا، ہم لوگ پچھلے 1 گھنٹے سے ادھر ادھر خوار ہو رہے ہیں، آپ ہمیں اندر آنے کا نہیں کہیں گی کیا؟ میں ایک دم بوکھلا گئی تھی۔ میں بولی، بی کیوں نہیں، آئیں۔ میں نے پیچھے مڑ کر اپنی بیٹیوں کو اشارہ کیا تو وہ سب کی سب سموسے وغیرہ چھوڑ کر ایک لائن میں لگ گئی تھیں۔ شمشاد نامی عورت، اس کا شوہر اور 7 بیٹے ہمارے گھر آ چکے تھے۔ شمشاد بولی، بہن میں صاف اور سیدھی بات کرنے کی عادی ہوں، اس لیے آپ لوگوں کا زیادہ وقت نہیں لوں گی۔ دراصل ہم دونوں خاندان ایک دوسرے سے ناواقف ہیں، مگر چونکہ اللہ نے مجھے 7 بیٹوں سے نوازا ہے تو میری یہی کوشش تھی کہ میں ایک ایسے گھر میں شادی کروں جہاں 7 بیٹیاں ہوں۔ آپ بس مجھے اپنی 7 بیٹیوں کا رشتہ دے دیں۔ میں ہکا بکا رہ گئی تھی، ایسا ہی لگ رہا تھا جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں مسکرا کر بولی، بہن ہمیں کچھ سوچنے کا وقت دے۔ وہ عورت مسکرا کر بولی، ضرور، مگر جواب ہاں میں ہی ملنا چاہیے۔ وہ سب اٹھ کر چلے گئے تھے، جبکہ حیران سی میں تھی
और मेरी बच्चियां थीं। साजदा की तो आंखें बरस रही थी। नाज़ो मुस्कुरा कर बोली, अम्मी हाँ कह देनी थी ना, सोचना क्या था, आपने देखा नहीं कितने प्यारे थे उस औरत के बेटे। मैंने मसनूई गुस्सा किया और बोली, शर्म नहीं आती माँ के साथ ऐसी बातें करते हुए। मैं बहुत हैरान थी कि आखिर वो औरत मेरी बेटियों के लिए मान कैसे गई थी। मेरे दिल पर कयामत ये सोच कर बीत गई कि वो औरत तो मुझे किसी तरह का कोई नंबर भी नहीं देकर गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मेरे साथ मजाक करके गई हो। मैं ऐसी सोच में हलकान हो रही थी कि हमारे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने जल्दी से भाग कर दरवाज़ा खोला तो सामने शमशाद खड़ी थी। वो बोली, बहन मैं जवाब लेने आई हूँ। मैंने मुस्कुरा कर कहा कि आज से मेरी 7 लड़कियाँ आपकी हुई। शमशाद बेइंतहा खुश हो गई थी। वो बोली, हम सबको भी ये रिश्ता दिलो जान से कबूल है, मगर हमारी एक छोटी सी शर्त है। शर्त का नाम सुनकर मैं अंदर से दहल गई थी। न जाने वो औरत क्या शर्त रख देती और हम सब के ख्वाब चकनाचूर होकर रह जाते। मैं बोली, बीबी बताएं कौन सी शर्त। शमशाद बोली, आप कभी भी अपनी बेटियों से मिलने बिन बताए नहीं आएंगी, हमेशा फ़ोन करके हमें इत्तला देकर ही आएंगी। मैं हंसती और बोली, बस इतनी सी बात, आपने तो मुझे परेशान ही कर दिया था। मैंने सोचा न जाने आप क्या शर्त रखने वाली हैं। आप इस बात की फिक्र ही ना करें। अल्लाह का शुक्र है हम में इतने मैनर्स तो हैं ही कि किसी के घर बिना इजाज़त के नहीं जाते। वो औरत मुस्कुराती और खुशी की डेट देकर अपने घर चली गई थी। उसने अगले जुमे की तारीख दी थी। हमसे ये खुशी संभाले ना संभलती थी। मैं इस बात पर तो उदास थी कि चंद दिनों में मेरा भरा घर खाली हो जाएगा, मगर बेटियों की मुस्तकबिल के बारे में सोचती तो दिल हल्का हो जाता था। देखते ही देखते इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो गई थी। जुमे के मुबारक दिन मेरी बेटियों की शादियां हो चुकी थी। वो रुखसत होकर अपने घर चली गई तो मैंने अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया था। शमशाद ने बताया था कि वो वलीमे की रस्म नहीं करेंगी, बस यतीम खाने में खाना भिजवा देंगी। मुझे भला क्या एतराज़ हो सकता था। मैं शादी के अगले दिन अपनी बेटियों से मिलने के लिए जाना चाहती थी, इसलिए मैंने शमशाद के नंबर पर कई बार फ़ोन किया था, मगर हर बार ही नंबर बंद मिला। हमारे यहाँ ये रस्म थी कि शादी के अगले रोज़ वालिदैन की तरफ से नाश्ता जाता है। गो कि हम इतने अमीर नहीं थे, लेकिन फिर भी मैं अपनी इस्तिताअत के मुताबिक ये रस्म करना चाहती थी। फ़ोन नहीं मिला तो मैंने खुद से नाश्ता वगैरह तैयार किया और अक्शे में बैठकर शमशाद के कालीशान घर में पहुंच गई थी। मैंने चौकीदार से कहा कि मैं अपनी बेटियों से मिलने के लिए आई हूँ। चौकीदार घर से इजाज़त लेने तो चला गया, मगर बोला, शमशाद बीबी ने इजाज़त नहीं दी। वो कह रही हैं कि शादी से पहले हमने सिर्फ एक ही शर्त रखी थी और आप तो वो भी नहीं निभा पाई। आप घर जाकर मुझसे फ़ोन पर इजाज़त लें तो ही आपको बेटियों से मिलने दूंगी। चौकीदार की बातें सुनकर मेरे दिल में गराह पड़ चुकी थी। ये सब तो मैंने कहीं नहीं देखा था। दिल में यह ख्याल आया कि शमशाद ने मेरे साथ ये सलूक सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि हम लोग बेमाया हैं। खैर, मैंने अपने आंसू साफ किए और उनके घर से दूर जाकर मैंने दोबारा फिर शमशाद को कॉल की थी। इस बार उससे राब्ता हो गया था। मैं बोली, मैं रस्म के तहत बेटियों के लिए नाश्ता लेकर आना चाहती थी। शमशाद शर्मिंदाजी हो गई थी। वो बोली, इस सब की क्या ज़रूरत थी भला, लेकिन आपकी खुशी इसमें है तो ज़रूर आप आ जाएं। मैं दोबारा से उनके घर चली गई थी। शमशाद का घर देखकर तो मेरी आंखें चुंधिया सी गई, मगर सबसे ज़्यादा खुशी मुझे अपनी बेटियों को देखकर हुई थी। ऐसा लगता था जैसे वो ही सब महल नुमा घर की मालकने हों। वो सब सोने के जेवरात से लदी कंदी थी। महंगे लिबास पहने वो मुस्कुरा कर बात कर रही थी। मेरी आंखों को सुकून मिल गया था। ये मंजर देखकर मैंने उनसे कह दिया था कि अब वो इसी घर में दिल लगाएं और रोज मुंह उठाकर माँ से घर मिलने ना आ जाया करे। साजदा ने मेरा हाथ थामकर मुझे तसल्ली दी और बोली, आप बिल्कुल भी फिक्र न करें, मैं आपकी बेटियों का बहुत ख्याल रखूंगी। मैं खुशी खुशी घर वापस जाने लगी तो सबसे छोटी बेटी नाज़ो मेरे गले से लगकर रोने लगी। वो बोली, अम्मी मुझे आपकी बहुत याद आती है, मुझे आपके साथ जाना है। मैं हंसकर बोली, हाँ ज़रूर नाज़ो, तुम अपने शौहर के साथ आ जाना मेरे घर। मैं उसे खुद से जुदा करने लगी तो मेरी नज़र नाज़ो के जले हुए हाथ पर पड़ी थी।
मेरी रूह लरस कर रह गई थी। मैं बोली, नाज़ो ये सब क्या है? साजदा जल्दी से आगे बढ़ी और बोली, अम्मी आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, यहाँ पर मैं मौजूद हूँ। लेकिन मैं ये सब कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। मैं बोली, नाज़ो मुझे बताओ क्या हुआ है। नाज़ो हंसकर बोली, अम्मी आप फिक्र क्यों करती हैं? मैं रिजवान के लिए खाना गर्म करने लगी तो चल गई। मैं परेशान हो गई थी। तभी कमरे से नाज़ो का शौहर बाहर आ गया था। मैं बोली, रिजवान बेटा, नाज़ो मेरी सबसे छोटी और बहुत ही लाडली औलाद है, इसका ख्याल रखना बहुत। वो बोला, आंटी आप बेफिक्र रहें। मैं अपने घर लौट आई थी। मैं इस बात से भी परेशान थी कि मेरी बेटियां इतने बड़े घर में ब्याही गई थी, मगर किसी एक के पास भी ज़ाती मोबाइल नहीं था। शादी के 2 हफ्ते बाद मैंने शमशाद को फ़ोन करके दावत दी। मैं चाहती थी कि एक बार मेरे सातों दामाद मेरे घर आ जाए, मगर शमशाद ने ये कहकर टाल दिया कि वो सब तो हनीमून पर गए हुए हैं। यूं ही करते कराते 2 माह का अरसा बीत गया। तब मेरे दिल और दिमाग में घंटियां बजने लगी थीं। मैंने सोचा कि बस सब बहुत हो गया है, मैं हर सूरत में अपनी बेटियों से मिलकर ही रहूंगी। इसलिए मैं बिना बताए शमशाद के घर चली गई। चौकीदार ने मुझे देखा तो बोला, मैं घर से इजाज़त लेकर आपको बताता हूँ। मैं एकदम से चौकीदार के कदमों में गिर पड़ी और रोते हुए बोली, तुझे अल्लाह का वास्ता है, मुझे आज मत रोकना। आज मैं अपनी बच्चियों से ना मिली तो मैं मर जाऊंगी। वो चौकीदार बहुत परेशान हो गया था। वो बोला, बहन अगर आपको घर भेज दिया तो मेरी नौकरी चली जाएगी, मगर आपने अल्लाह का वास्ता दे दिया है, अब मैं अल्लाह के नाम पर अपनी नौकरी कुर्बान करता हूँ। जाओ जाकर मिल लो अपनी बेटियों से। मैं जल्दी से घर की जानिब भागी थी। मैं अंदर दाखिल हुई तो सामने का मंजर देखकर मेरी रूह तक लरस गई थी। मेरी बेटियां नौकरानियों की तरह काम कर रही थीं। उन्होंने पुराने से लिबास पहने हुए थे। एक के हाथ में झाड़ू था तो दूसरी मशीन में मशगूल थी। मैं एकदम से गरज कर बोली, ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? सभी मेरी जानिब मुतवज्जो हो चुके थे। नाज़ो भाग कर आई और मुझसे लिपट कर रोने लगी। मेरी बाकी बच्चियां भी मेरे साथ आकर लग चुकी थीं। मैं बेइंतहा गुस्से में ललकार कर बोली, शमशाद तुम्हें शर्म नहीं आई? तुमने मुझसे मेरी बेटियां दूर कर दी और अपने घर में लाकर उन्हें मुलाजमाएं बना दिया। किस चीज की कमी थी तुम्हारे पास? क्या होता अगर तुम तनख्वाह पर किसी को काम पर रख लेती? लेकिन अब बस, मैं मजीद ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं लेकर जा रही हूँ अपनी बेटियों को यहाँ से, और एक बात याद रखना, मैं उनके लिए खुला लेकर रहूंगी। शमशाद एकदम से परेशान हो गई। उसने आगे बढ़कर मेरे सामने हाथ जोड़ दिए। वो बोली, बुशरा इतना बड़ा फैसला करने से पहले एक बार मेरी बात सुन लो। जिस तरह तुम अपनी ममता के हाथों मजबूर थी, मैं भी मजबूर थी। ये सब मैंने मजबूरी के तहत ही किया है। दरअसल बात यह है कि जब मैंने बेदर पे 7 लड़कियों को जना तो सबकी नज़र मेरी जानिब लग गई थी। तब मैं बुरी नज़र का शिकार हो गई थी, मगर एक औरत ने मुझ पर और मेरे बेटों पर काला जादू करवा दिया था। उस दिन के बाद से मेरे बच्चों ने बहुत सख्तियाँ बर्दाश्त की हैं। ये सब हर वक्त बीमार ही रहते थे। मैं पीर बाबा के पास तोड़ के लिए गई तो उन्होंने मुझे बताया कि अगर मैं अपने 7 लड़कों की शादी जुमे के दिन ऐसे घर में करूं जहां 7 लड़कियां हों तो मेरे बेटों पर जिल्ला जादू टूट जाएगा, नहीं तो मेरे 7 बेटे आगे पीछे मर जाएंगे। तुम खुद ही सोचो मैं ऐसा घराना कहाँ से ढूंढती। पीर बाबा ने कहा था कि उन लड़कियों को पूरे माह के लिए घर में रखना होगा, नहीं तो उन पर भी जादू चल जाएगा। मैंने बड़ी मुश्किल से ऐसा घराना ढूंढ लिया था जहाँ 7 लड़कियाँ थीं। बुशरा तुम खुद सोचो, क्या तुम्हारे बेटों का कोई जोड़ है मेरे बच्चों के साथ? नहीं ना, ये तो फकत मैंने मजबूरी में किया था। 6 माह बाद मैं इनको तलाक दिलवा दूंगी, मगर तब तक तुम उनको यहीं पर रहने दो। मैं गुस्से से बोली, शमशाद तुम्हें इस किस्म की बात करते हुए शर्म आनी चाहिए। नाज़ो का शौहर रिजवान बोला, अम्मी मैं तो अपनी बीवी को हरगिज़ तलाक नहीं दूंगा, मेरी बीवी में तो कोई ऐब नहीं है। तब साजदा का शौहर बोला, अम्मी मैं ये सब इसलिए बर्दाश्त कर रहा था क्योंकि आप काले जादू का तोड़ करना चाह रही थी। भाइयों को मरते हुए नहीं देख सकता था, मगर एक बात याद रखें, जैसे ही ये जादू ख़त्म हुआ मैं अपनी बीवी को इज्जत और एहतराम के साथ अपने पास इस घर में रखूँगा। शमशाद के बाकी बेटों ने भी मेरे सामने हाथ जोड़ दिए और बोले, हम फ़कत इसलिए चुप थे क्योंकि हम जादू का तोड़ चाहते थे, वरना हमें अपनी बीवियाँ बहुत पसंद हैं। उस दिन शमशाद ने भी मुझसे माफ़ी मांग ली थी। वो बोली, बुशरा
تم جب چاہے آ کر اپنی بیٹیوں سے مل لیا کرنا. بس 4 ماہ مزید رہ گئے ہیں، ان کو ساتھ مت لے کر جانا. میں نے اپنی بچیوں سے پوچھا تو وہ بولی کہ ہمارے شوہر بہت اچھے ہیں، وہ تو بس اپنی والدہ کے ڈر سے خاموش رہتے ہیں. میری بچیاں خوش تھیں تو بولا میں ان کا گھر کیوں خراب کرتی، اس لیے میں چپ چاپ اپنے گھر لوٹ آئی. میری بچیوں کو موبائل فون بھی دے دیے گئے تھے. اب وہ میرے ساتھ مسلسل رابطے میں رہتی تھی. میں کبھی وقتاً فوقتاً ان سے ملنے آتی تھی. اب وہ مہارانیوں کی طرح رہتی ہیں. آج کل کا دور ایسا ہے کہ جو جتنا شریف ہوتا ہے لوگ اسے اتنا ہی دبا کر رکھتے ہیں. میرا مشورہ تو یہی ہے کہ اپنی شادی شدہ بیٹیوں کو سسرال کے رحم و کرم پر چھوڑنے سے بہتر ہے کہ ان کی خبر گیری کرتے رہنا چاہیے، تاکہ سسرال والے ان کے ساتھ برا سلوک کرنے سے پہلے 1000 بار سوچیں. بچیاں لاوارث نہیں ہیں،